ڈیڈ لائن ختم، تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع، انتظامیہ، پولیس اور LDA کا مل کر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ شاہدرہ موڑ تا امامیہ کالونی سینکڑوں تجاوزات گرا دی گئیں، 50 سے زائد پلازے اور دکانیں سیل، 77 افراد گرفتار۔ ایڈمنسٹریٹر رافع حیدر نے کہا آپریشن تجاوزات کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گا۔ LDA نے عارضی تجاوزات روکنے کا منصوبہ بھی بنا لیا، پختہ تعمیرات توڑنے کے لیے علیحدہ اسکواڈ تشکیل، کریم مارکیٹ، مون مارکیٹ اور گلشن راوی میں کیمپ لگائے جائیں گے۔ LDA ٹیمیں ہر روز آپریشن کے لیے مختلف علاقوں میں نکلیں گی۔ تاجروں نے نگران وزیر اعلیٰ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے، انارکلی اور اردو بازار میں دکانوں کے سامنے تجاوزات کی بھرمار، ابھی تک کسی کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا گیا۔ مین شاہراہوں پر ریڑیاں ہی ریڑیاں، ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی، شہریوں کو پیدل چلنے میں مشکلات کا سامنا۔ تجاوزات مافیا نے بیدیاں روڈ پر احکامات ہوا میں اڑا دیے، ڈیڈ لائن ختم ہونے کے کئی گھنٹوں بعد بھی مافیا کا قبضہ برقرار، آپریشن زبانی جمع خرچ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور میں اندھیر نگری چوپٹ راج، محمود بوٹی اور رنگ روڈ کے اعتراف وقف اراضی پر قبضے کا انکشاف ہوا۔ سرکاری اراضی کئی برس سے افسروں کی ملی بھگت سے قبضہ مافیا کے رحم و کرم پر تھی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس کنٹرولڈ ایکس کوریڈور بند روڈ منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا، پیکج 1 اور 2 کے کانٹریکٹر نے اہداف کے حصول کا پلان پیش کر دیا۔ فری مارکیٹ سے موٹر وے تک کوریڈور بنانے کا منصوبہ LDA 2 ارب 97 کروڑ سے منصوبہ تیار کرے گا۔ 4 لین کوریڈور میں مولانا شوکت علی روڈ اور نور الامین روڈ پر انڈر پاس بھی بنے گا۔ فضل حق گول چکر کی ریماڈلنگ ہوگی، منصوبے سے ٹریفک کے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس 40 اسمارٹ پولیس اسٹیشنز کی تکمیل کی ڈیڈ لائن دے دی۔ پہلے فیز میں لاہور میں 23 اسمارٹ پولیس اسٹیشنز بنیں گے، مختلف اضلاع میں بھی 17 اسمارٹ پولیس اسٹیشنز کے قیام کا فیصلہ۔ ریلوے ملازمین سرکاری کاموں کے لیے اپنے پیسوں سے پیٹرول خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ قانون کے مطابق ملازمین کو ٹریک کی دیکھ بھال کے لیے ملنے والا پیٹرول عرصہ دراز سے بند، ریلوے افسران نے بھی پیٹرول کی بندش پر خاموشی اختیار کر لی۔ ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری، ورنہ آج یہ ملک تو نہ جانے کہاں پہنچا ہوتا۔ ہمارے ارد گرد کے ممالک چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم زمین سے نہیں اٹھ رہے۔ تو یہ اس طرح سے تو نہیں چل سکتا معاملہ۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھتے ہیں 2013 میں کتنی شدید تھی، اس کو ہم نے آ کے ختم کیا۔ آسان کام نہیں تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا، اور وہ بھی 4 سالوں کے اندر اندر۔ مخالفین کو الیکشن میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی گھن گرج، بولے ہمارے ساتھ جو ہوا اسے روزانہ بتانا مجبوری ہے، صرف نون لیگ کے ساتھ ہی نہیں ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی، ملک معاشی گرداب میں پھنس چکا ہے، نون لیگ آئے گی تو دوبارہ خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔ بڑا جلسہ مینار پاکستان پر اس سے پہلے چشم فلک نے نہیں دیکھا، اور نہ صرف جلسہ کامیاب ہوا، اس کے بعد جو پارلیمانی بورڈ کا سلسلہ ہے جس میں امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ کی جا رہی ہے، کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کیا جا رہا ہے، وہ ہر ڈویژن ہر صوبے کا وہ اجلاس جاری ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے معاملات آگے چل رہے ہیں۔ تو یہی الیکشن کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ امیدواروں کا انتخاب کر لیں، پھر جلسے بھی کریں گے۔ لیگی رہنما عطا تارڑ اور ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد انتخابات سے بھاگنے کی کوشش ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف بھی فیصلے کیے مگر ہم نے مانے۔
पी के आई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कवायद के मुताबिक नहीं हुए। जुराइम पेशा अफराद को अपने इमाल का हिसाब देना होगा। मेरे खिलाफ फैसला आया। पूरे पंजाब का सबसे बड़ा हल्का कसूर शहर का हल्का बन गया 5,11,000 पे, जहाँ दूसरी तरफ 4 लाख कुछ हजार पे पूरे पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो ये एतराज़ मेरा भी था, लेकिन इस एतराज़ पर हम हाई कोर्ट गए, वहाँ पर जाकर हमने अपनी बात की, फैसला रिमांड हुआ, नीचे चला गया, फिक्स नहीं हो पाया, लग ना पाया। इसी तरह से मेरा कौमी असम्बली की सीट के बारे में भी मौक़िफ़ था कि ज़िला कसूर की एक सीट बनती है, यानी जहाँ 4 है वहाँ 5 बनती हैं, और 4.51 पर मेरा केस सबसे बेहतर है। ये फ़र्क है एक जमहूरियत पसंद पार्टी के अंदर कि जो ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती, जो ख़वातीन को अमन व अमान तबाह करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, जो ख़वातीन को उनके बारे में जो गुफ्तगू जिस तरह से उनके बारे में उनकी अपनी पार्टियों में बातें होती हैं, ये फ़र्क है PMLN और बाकी उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कि PMLN के अंदर जमहूरी दिमाग रखने वाली लीडरशिप है और उसके साथ साथ जमहूरी माइंड सेट रखने वाली ख़वातीन है, जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए सामने आई हैं और हर खातून दूसरे से बढ़कर है। ये एक बड़ा मुश्किल होगा पार्टी के लिए कि वो उसके ऊपर जो उनको लिस्टें तैयार करनी है, लेकिन ये बात तो तय है कि ये बात देखनी होगी पाकिस्तान की आवाम को कि वो कौन लोग हैं जो सिर्फ ख़वातीन का नाम बेचते हैं, जो महरूमियों को बेचते हैं, जो लाशों पे सियासत करते हैं, जो ख़वातीन के नाम पे सियासत करते हैं और इन रिटर्न देते क्या हैं। नून लीग पार्लिमानी बोर्ड में ख़वातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। हमारी जमात ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती। तर्जुमान नून लीग उज़मा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, हमारी जमात में हर जगह ख़वातीन को मरकज़ी ओहदे दिए गए हैं। सियासी गहमा गहमी में सियासतदान इधर से उधर होने लगे। अशरफ अंसारी ने एक बार फिर नून लीग को खैराबाद कह दिया। गुजरावाला से आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं पार्लिमानी इजलास में टिकट न मिला तो इजलास छोड़कर आ गया। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातें मुतहर्रिक। नून लीगी क़यादत की उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पार्टी टिकट के उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने की इजाज़त दी। हर उम्मीदवार को 22 दिसंबर तक पार्टी के मुताल्लिका ज़िली सदर को हल्फनामा जमा कराना होगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ NA 15 माही सहरा से भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी कल जमा करवा देंगे। मियां नवाज शरीफ का लाहौर और कराची से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। कायद नून लीग ने मरियम नवाज के मखसूस नशिस्त पर MNA बनने की मुखालफत कर दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज जनरल इलेक्शन जीत कर ऐवान का हिस्सा बनेंगी। मरियम नवाज शरीफ का 11 कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का इम्कान। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। PTI कारकुन सनम जावेद के वालिद ने बेटी के लिए कागजात हासिल कर लिए। ज़राए के मुताबिक वो मरियम नवाज के खिलाफ PP 150 से इलेक्शन लड़ेंगी। पीपल्स पार्टी का मखसूस नशिस्तों पर पुराने चेहरे तब्दील करने का फैसला। 2 मरतबा असम्बलियों में नुमाइंदगी करने वालों को पार्टी टिकट ना देने पर गौर। हाइब्रिड इजलास में पार्टी के आला ओहदेदारों ने तजवीज़ दे दी। नौजवानों और पार्टी के सरगर्म कारकुनों की जानिब से तजवीज़ का खैर मकदम। उम्मीदवारों के कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार। लाहौर बार ने भी बड़ी तंजीमों की आवाज़ में आवाज़ मिला दी। मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता, फौरी इस्तीफा दें। 8 फरवरी के इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इंतखाबी अमल में तजादात दूर ना करना मुल्क के लिए नुकसानदेह है।
मीडिया नुमाइंदों के पुलिस हिरासत में मुलजिमों के इंटरव्यूज के खिलाफ दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने DGFIA चेयरमैन पैमरा और एडवोकेट जनरल पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। चेयरमैन PTA से भी रिपोर्ट तलब। समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। ड्रेप के साबिक CEO शेख अख्तर हुसैन गिरफ्तार। FIA के इंसदादे बदउनवानी सर्कल ने गिरफ्तार किया। अख्तर हुसैन को PhD की बुनियाद पर तैनात किया गया। डिग्री जाली निकली। स्पेशल जज ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज की। FIA ने पकड़ लिया। नेपरा का आवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नई कीमत का इतलाक 1 जनवरी से होगा। नोटिफिकेशन जारी। शहर में गैस बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में इजाफा। सुई नॉर्दर्न हुकाम का कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में कंप्रेसर के इस्तेमाल पर मुतादिद कनेक्शंस काट दिए गए। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी काम करने वाला सारिफ बाज न आया तो पूरी सर्दियां गैस नहीं मिलेगी। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीम का शालामार टाउन में निम्को यूनिट पर छापा मारा गया। 8000 किलो नाकिस निम्को, 2000 लीटर गैर मयारी ऑयल तल्फ। मुकदमा दर्ज। DG फूड अथॉरिटी का कहना है जलसाजी का मकरू धंधा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सूबाई दारुल हुकूमत की फ़ज़ा आलूदगी से पाक न हो सकी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। जहरीली फ़ज़ा से शहरी मुतादिद बीमारियों में मुब्तला। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। दादा दरबार हस्पताल में बेहतरी के लिए मुजवज़ा उमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। हस्पताल में मनशियात के आदी अफराद की इलाज का कायम करने पर गौर। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा दादा दरबार हस्पताल में इब्तदाई तौर पर 50 बेड्स मुख्तस होंगे। इलेक्ट्रिक रिक्शों की मैन्युफैक्चरिंग से मुताल्लिक इजलास। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने सदारत की। कहा इन रिक्शों से फ़ज़ाई आलूदगी में खासी कमी होगी। सिंगल चार्जिंग पर 150 किलोमीटर सफ़र कर सकेंगे। शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के अमल में तेज़ी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत सूबा भर में 2,33,000 से ज़ायद शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। FIA लाहौर जोन का जुराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग। रवां साल 550 मुलजिम गिरफ्तार हुए। वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 320 मुलजिमों को धर लिया गया। बिजली और गैस चोरी के भी 23 मुलजिम पकड़े गए। कौमी टीम के ऑलराउंडर शादाब खान पंजाब पुलिस का हिस्सा बन गए। शादाब खान की IG पंजाब से मुलाकात हुई। पंजाब पुलिस ने क्रिकेटर शादाब खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। क्रिकेटर शादाब खान ने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन किया। IG और एडिशनल IG पंजाब से शादाब खान को एजाजी DSP के रैंक भी लगाए। गवर्नर पंजाब से फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और एल्यूमिनाई वफ़द की मुलाकात। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने वफ़द की क़यादत की। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की क़यादत में यूनिवर्सिटी में फैमिली मेडिसिन पर काम हो रहा है। इदारे के साबिक तलबा आगे आएँ और तरक्याती कामों में हिस्सा लें। पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी पेश। स्नूकर के खेल को फ़रोग देने के लिए अहसन इक़दाम।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी और स्नूकर एकेडमीज एंड क्लब के दरमियान MOU पर दस्तखत। रजिस्ट्रार सुपीरियर यूनिवर्सिटी मुदस्सर कामरान और चेयरमैन स्नूकर एकेडमीज अजीम जावेद ने दस्तखत किए। शाहिद फकीर ने कहा कि स्नूकर का खोया हुआ मकाम वापस लाने में सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपना कलीदी किरदार अदा करेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एसोसिएट डिग्री के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। पार्ट 2 में 40.5% उम्मीदवार कामयाब करार पाए। पार्ट 1 में 28.6% तलबा ने कामयाबी समेटी। समाज से महरूम 40.7 उम्मीदवार BA में कामयाब करार पाए। और दरबार बीबी पाकदामन का सालाना उर्स शुरू। महकमा औकाफ का उर्स पर दरबार 2 रोज़ के लिए खोलने का फैसला। मज़ार शरीफ पर रस्म गुसल और चादर पोशी कर दी गई। दरबार तरक्याती काम की वजह से कई रोज़ से ज़ायरीन के लिए बंद था।